सबको नमस्कार। आज इंडस्ट्री और कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो पिछले कुछ समय में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उनके बारे में आपको आज बताएंगे। हमारा जे गतो एक समय नहीं जे इंडस्ट्री और कॉमर्स डिपार्टमेंट मध्ये जे नूतन प्रोजेक्ट, नूतन स्कीम, नूतन इन्वेस्टमेंट जे আমরা শুরু করেছি এটা নিয়ে কিছু আছে কথা বলবো। স্টেট গভর্নমেন্টের যে মান্থলি প্রেস ব্রিফিং এর একটা পার্ট মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট গতকালকে শেষ হয়েছে। তারপরে আমরা এটা আবার প্রেস ব্রিফিং শুরু করেছি। আপনারা সবাই জানেন একটা পিএম একতা মল ইউনিটি মল হচ্ছে আমাদের যেখানে জুট মিল যেখানে আছে জুট মিল কমপ্লেক্স মধ্যে। তো এটা একটা প্রজেক্ট আমরা শুরু করতে পেরেছি। তারপরে রাজ্যে প্রায় 45,000 মাইক্রো मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज আছে, ছোট উদ্যোগ আছে। তো এই সবইকে সার্ভে করে ট্রেনিং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করার একটা প্রজেক্ট আমরা নিয়েছি। র‍্যাম্প রেজিং এন্ড অ্যাক্সেলারেটিং দ্য এমএসএমই পারফরম্যান্স, এটা একটা ভারত সরকারের একটা প্রজেক্ট। আমরা ভারত সরকার থেকে প্রায় 65 করোড় টাকা আমরা পেয়েছি। আমাদের উদ্দেশ্য আছে কমপক্ষে 3,200 এন্টারপ্রেনিয়রকে আমরা আগামী দিনে আমরা ট্রেনিং করাবো, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, মার্কেটিং সাপোর্ট ইত্যাদি আমরা করব। আমরা অনেক ইনভেস্টমেন্ট সামিট মধ্যে আমরা অংশগ্রহণ করেছি, যেমন ভাইব্রেন্ট গুজরাট, একটা হায়দ্রাবাদमध्ये হয়েছিল, মুম্বাইमध्ये হয়েছিল, তারপর কলকাতা, গুয়াহাটি, মিনিস্ট্রি অফ ডোনার থেকে আয়োজন করা হয়েছিল। তো আমরা গত এক বছরের মধ্যে প্রায় 14 এমওইউ আমরা সাইন করেছি আর 6 মিডিয়াম সাইজ উদ্যোগ এখানে ইনভেস্টমেন্ট করেছি। রাজ্যে ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য कम समय में परमिशन, लाइसेंस अथवा सर्टिफिकेशन करा हुए जन्य बिजनेस रिफॉर्म्स আমরা করছি। তো এই বছর ভারত সরকার থেকে অ্যাকশন প্ল্যান দেওয়া আছে, এখানে 287 অ্যাকশন পয়েন্ট দেওয়া আছে, আমরা এখানে কাজ করছি। তারপরে পিএম বিশ্বকর্মা, আপনারা জানেন যে পারম্পরিক যে কলা কৌশল আছে আমাদের নর্থ ইস্ট মধ্যে, সেটা প্রায় 50,000 লোক এখানে আবেদন করেছে পিএম বিশ্বকর্মা। তো আমরা এখানে অ্যাপ্রুভাল করে প্রায় 10,000 জনকে আমরা ট্রেনিং শুরু করেছি। তারপরে যে গত মাসে 19-20 মে ভারত সরকারের সচিব, মিনিস্ট্রি অফ মাইক্রো স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজের সচিব শ্রী সুভাষ চন্দ্র লাল দাস মহোদয় এখানে ভিজিট করেছেন ত্রিপুরাতে। উনি অনেক নির্দেশ আমাদেরকে দিয়েছেন, ম্যাডাম ডিটেল মধ্যে বলবে। তারপরে ভারত সরকারের যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট স্কিম, এটা 8 এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে গেছে। উন্নতি, এটা এখানে যারা উদ্যোগ শুরু করবেন ওদের জন্য ক্যাপিটাল ইনসেন্টিভ প্রায় 7.5 কোটি টাকা করে দেওয়া যায়। अन्य बेनिफिट আছে, সেটা নিয়েও আমরা আপনাকে ব্রিফ করব। রাজ্য সরকার একটা স্কিম আছে, ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ইনসেন্টিভ স্কিম, টিপস 2022 থেকে আছে, এটাও আমরা রূপায়ণ করেছি। আমাদের রাজ্যের যে আইটিআই যে অ্যাডমিশন প্রসেস ইতিমধ্যে শুরু হয়ে যাবে, আগামী সোমবার থেকে 10 জুন থেকে শুরু হয়ে যাবে। তো সেটা নিয়ে আমরা কাজ করছি।
ITI मॉडर्नाइजेशन एक प्रोग्राम আছে भारत सरकारेर स्ट्राइव प्रोग्राम मध्ये আমরা মডার্নাইজ করছি যে ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি জন্য স্কিম আছে আপনারা জানেন আমাদের কুমারঘাট যে ইন্ডাস্ট্রি সেট থেকে যে পাইনাপল ক্যানিং করে আমরা গত 2 বছর যাবত ইউরোপ মধ্যে পাঠাচ্ছি এই ধরনের অনেক ছোট মিডিয়াম উদ্যোগ আমাদের রাজ্যে আসছে তারপরে অনেক প্রজেক্ট আমাদের KIDC टी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक ऑक्शन सेंटर शुरू करेছে मार्च मासे और सबसे गुरुत्वपूर्ण আছে আমাদের বাংলাদেশ থেকে যে আমদানি রপ্তানি তো আমাদের सबरूम लैंड पोर्ट 9 মার্চে উদ্বোধন হয়েছিল তারপরে গত মাসে 23 তারিখ আগরতলা থেকে ভারত और বাংলাদেশ থেকে জয়েন্ট মিটিং হয়েছে এখানে আমাদের আধিকারিক বাংলাদেশ আধিকারিক এবং যারা হালদিয়া চট্টগ্রাম আশুগঞ্জ পোর্ট দিয়ে যারা কাজ করে এরকম লজিস্টিক্স কোম্পানি এখানে ছিল আমাদের রাজ্যের যারা ট্রেডার্স ওখানে ছিল এই যে ট্রেড রুট চিতগাঁও আশুগঞ্জ হালদিয়া এটা দিয়ে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট শুরু করার জন্য যে প্রসিজার এখানে সবাইকে বোঝানো হয়েছে এখানে অনেক ওদের কোয়েরি ছিল কত সময় লাগবে কত পারমিট লাগবে কোথায় কি ফিস ভরতে হয় অনেক এখানে সুবিধা অনলাইন করা গেলে সুবিধা হবে আমার মনে হয় যে চট্টগ্রাম এবং আশুগঞ্জ পোর্ট দিয়ে যে আমাদের রপ্তানি এটা কয়েকদিন মধ্যেই শুরু হবে তো আমি আমাদের ডাইরেক্টর ইন্ডাস্ট্রিজ বিশ্বশ্রী ম্যাডামকে বলবো একটু डिटेल मध्ये उन्हें बोलते सो पीएम एकता मॉल जो विकास है ये जूट मिल 4.18 एकड़ मध्ये हो रहा है ये पूरा 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें हमें 114 करोड़ जो है वो भारत सरकार से हमें फंड के रूप में मिल रहा है और ये हमने अगरतला स्मार्ट सिटी से हम लोग ये करवा रहे हैं तो टेंडर भी फ्लोट हुआ है और अवार्डिंग भी हो गया है কিছু দিনের মধ্যে ये काज भी शुरू हो जाएगा इसमें मेन ये है कि हमारे पास हमारे त्रिपुरा में जितना भी ODOP प्रोडक्ट्स है और हमारे SHGs का जितना भी प्रोडक्ट्स है वो सब यहाँ पे डिस्प्ले होने के लिए सुविधा रहेगा उसके अलावा भी उस मॉल में कुछ कमर्शियल भी स्लॉट्स रहेंगे एंड कुछ मल्टीप्लेक्स भी रहेंगे सो दैट पूरा एंगेजमेंट हो जाएगा जैसे सर ने बताया था हम MSMEs के लिए एक रैंप का रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस बोल के एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने इसका प्रपोजल भेज के अराउंड 65.17 करोड़ हमें स्टेज के लिए ये मिला है इसमें हम लोग अगले 3 साल में 32,000 यूथ को हम MSME के स्कीम्स के रूप में एक्सपोजर देंगे उनको ट्रेनिंग करेंगे हमारा चेष्टा ये रहेगा कि 32,000 यूथ को जब हम एक्सपोजर कराएंगे उनसे कम एटलीस्ट 10% लोग हमें MSMEs को वो इस्टेब्लिश करके उसको इम्प्रूव करें इसके साथ साथ हमें उनको जैसे बाकी MSME मिनिस्ट्री के जो स्कीम्स है लाइक Z सर्टिफिकेशन हो लीन सर्टिफिकेशन हो ये सब में भी हम उनको हेल्प करेंगे इसके लिए एक हेल्प डेस्क भी हर एक ब्लॉक में भी हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं ये सब हो जाएगा जो इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर में हमने नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट जो मिनिस्ट्री ऑफ डोनर से किया गया था इसमें पूरा 14 MOUs त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ 14 MOUs हमने साइन किया है पूरा 1861 करोड़ का ये अमाउंट है ये 14 MOUs में 6 लोगों ने ऑलरेडी काम भी शुरू कर चुके हैं और 3 ऑलमोस्ट लैंड भी अलॉट हो चुका है वो लोग शुरू करेंगे बाकी हमारा प्रोसेस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो अभी हमारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट है इसमें त्रिपुरा 2016 में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे पहले इसमें था अभी भी हम लोग इसमें अच्छे पोजीशन में हैं इस साल हम और इम्प्रूवमेंट ये कर रहे हैं ताकि हम इन द मंथ ऑफ मार्च हमने पूरा डिपार्टमेंट्स के साथ मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स को लेके भी एक वर्कशॉप किया है तो इसमें पूरा 291 रिफॉर्म्स होगा मेन इम्पोर्टेंट ये है कि हम इसको बिजनेस कम्युनिटी को त्रिपुरा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम इसको कैसे इजीली करा सकते हैं
तो हम ये आशा कर रहे हैं कि हम एटलीस्ट इंडिया में हम लोग टॉप में रहेंगे। जैसे सर ने बताया था, हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन में एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होता है। आज के दिन में हमारा 57,000 आज के दिन में 57,000 एमएसएमई रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें करीबन 30% मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में है एंड अराउंड 40% ट्रेडिंग सेक्टर में है एंड इसमें 30% जो है वुमेन ओरिएंटेड एमएसएमई है। तो रैंप स्कीम के अंदर और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से हम इसको डिटेल में इनका एक सर्वे कर रहे हैं एंड इस सर्वे के माध्यम से हर एक एमएसएमई मतलब पूरा 57,000 एमएसएमई का हम लोग सर्वे करने वाले हैं और उनमें उनका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उनको सपोर्ट करने का ये कर रहे हैं। इसी मुताबिक में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस साल 67 करोड़ का एक प्रोजेक्ट प्रपोजल हमने भेजा है। इसमें मेन जो हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तारित रूप से है नहीं, जैसे खोवा सिपाही जगह, सो इसमें कुछ इंडस्ट्रियल के लिए डेवलपमेंट के लिए लैंड आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें हम इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंडिंग के सपोर्ट के थ्रू इसमें डेवलप करने वाले हैं। और पीएम विश्वकर्मा जो प्रोजेक्ट है, हम उसमें 18 ट्रेड्स को हम लोग जो आइडेंटिफाई करके उनको विश्वकर्मा का हम आईडी देते हैं। मेन ये है कि जितना भी हमारे ट्रेडिशनल आर्टिजान जो है उनको आईडी देके उनका एक रिकग्निशन करके देन हम उनको स्किल अपग्रेडिंग करके देन उनको लोन की तरह हेल्प करने के लिए ये पूरा विश्वकर्मा का प्रोजेक्ट का मेन यही है। तो आज के दिन में पूरा 50,000 एप्लीकेशन हमारे पास आया है। इसको 3 लेवल पे वेरिफिकेशन करते हैं। पहले पंचायत लेवल में होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी उसका वेरिफिकेशन होता है, देन उसके बाद आके स्टेट लेवल पे होता है। तो स्टेट लेवल में आज के दिन में 10,000 एप्लीकेशन वेरीफाई हो चुके हैं एंड ये वेरिफिकेशन होने के बाद इनका ट्रेनिंग शुरू होता है। तो ऑलरेडी 2,500 लोगों को इसमें ट्रेनिंग हुआ है। ये ट्रेनिंग होने के बाद इनको टूल किट दिया जाता है। टूल किट देने के बाद देन वो लोग लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जब हमारे सेक्रेटरी सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जब सेक्रेटरी सर आए थे, HCL दास सर आए थे, उन्होंने ये बताया था कि त्रिपुरा ने डे 1 से पीएम विश्वकर्मा में हमने अच्छा सा इनिशिएटिव लिया। हालांकि हमारे में कुछ प्रॉब्लम्स थे बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोऑर्डिनेट करके हमने इसको अच्छा इम्प्लीमेंट किया। त्रिपुरा हैज इम्प्लीमेंटेड बेटर इन ऑल द स्टेट्स, उनका ऑब्जर्वेशन ये था। देन हमने जो हमारा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम जो है, टिप्स स्कीम जो है, इसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स हम इंडस्ट्रीज को देते हैं, जैसे कैपिटल इंसेंटिव सब्सिडी, पावर का सब्सिडी, ये सब देते हैं। तो हमने लास्ट 5 साल में 250 यूनिट्स को 33.61 करोड़ ये स्टेट गवर्नमेंट्स में उनको इंसेंटिव के रूप में मिला है। और सेंट्रल गवर्नमेंट से लास्ट 5 इयर्स में पूरा 52.50 करोड़ दिया गया है। ये नीड्स का स्कीम था। अभी वो नीड्स का स्कीम मॉडिफाई करके उन्नति उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियल स्कीम बोल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 9 मार्च को इसका घोषणा किया था। इसमें क्या होगा कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न में जितना भी जिलाएं हैं उसको जोन ए और जोन बी कैटेगरीज में करेंगे और उसमें जो भी इंडस्ट्रीज है उनको उसके हिसाब से इंसेंटिव्स मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव है जो जोन ए में है उनको 30% अप टू मैक्सिमम 5 करोड़ तक उनको इंसेंटिव मिलेगा। जोन बी में जो है 50% मैक्सिमम अप टू 10 करोड़ तक उनको इंसेंटिव मिलेगा। इसके अलावा किसी ने अगर लोन लिया है तो जोन ए में 3% एंड जोन बी में 5% तक उनको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 7 साल के लिए। एंड इसके अलावा 100% नेट जीएसटी का रिफंडमेंट है बोथ इन जोन ए एंड जोन बी। सो अगर देखा जाएगा तो एक इंडस्ट्री उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैक्सिमम 250 करोड़ तक एक इंडस्ट्री इसमें इंसेंटिव्स के रूप में ले सकती है। अभी हमारे स्टेट में करीबन 8 यूनिट्स रेडी हैं इस स्कीम में बेनिफिट्स लेने के लिए। अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद इनका शुरू इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स लेना शुरू हो